باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں جی نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ فرماتے میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ بیٹا کتنی دیر بعد آیا ہے؟ 12 سال بعد۔ اور ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا کو غیر نہیں، میرا پتر بایزید آ گیا ہے۔ فرماتے اماں جان نے دروازہ کھولا، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، ایڑیاں بھی پھٹی تھی، داڑھی میں راکھ اٹی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں دیا۔ بایزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور بھائی جس نے جو پایا، جتنا پایا، خدمت سے پایا، ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کا تذکرہ پڑھا جس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے۔ وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ۔ آپ جانتے ہو والدین کے ساتھ اولاد کا رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جب تک ہم اپنے والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جب تک ضروریات پوری کرتے رہے، رابطے میں رہے۔ لیکن جب ہم نے خود پر پرزے نکالے، کمانے کے قابل ہوئے، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً، آپ بھی دیکھتے ہم نے بھی دیکھا ہے، تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کہ بندہ واش روم تک بھی خود نہ جا سکے، پخانہ بھی نہ خود صاف کر سکے، تو اولاد کے لیے کتنا امتحان ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسجد مولوی صاحب دعا کرو ابا جی نو اللہ پردہ دے دے، بڑے ہی اس وقت اوکھے نے۔ وہ تو نہیں اوکھے یار، تم زیادہ مشکل میں ہو، اب تمہیں سنبھالنا جو پڑ رہا ہے نا۔ تو بعض اوقات ہم بھی دوستوں میں بیٹھے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے، ساتھ پشتے بیٹھ کے کھائیں ختم نہ ہو بھائی، یہ بات تو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات مرنے تک ہمیں دھوکے میں رکھتی ہے، جب چارپائی پہ آ گرتے تو پھر سمجھ لگتی ہے وہ تو ہم ساری زندگی دھوکے میں رہے، پردیس کے دھکے بھی کھاتے رہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں چھوڑا ان کے لیے۔ اور یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اولاد یاد کرے گی، کٹھے دا سوائے یاد کر دیے۔ ایک ہفتے بعد لوگ ہمارے پاس دعا کرو ابا جی نو اللہ پردہ دے دے، تو مشکل ہے بھائی۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، اور وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے۔ اس 4 بیٹوں میں ایک بیٹا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا ابا جی اس وقت بیمار ہے اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، میں ایک عجیب سا فیصلہ تمہارے سامنے رکھوں گا، جو قبول ہو وہ بات کرنا۔ کہا وراثت سے اس شخص کو حصہ نہیں ملے گا جو باپ کی خدمت کرے گا، اگر میں کروں تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کرو گے تو آپ کی نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، عاشقوں کی طرح خدمت کی، اور جب والد دنیا سے جانے لگا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے ابا جی راضی ہوتے ہیں نا، اماں جی راضی ہوتے ہیں، تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو اس جملے کا نشہ مرنے تک نہیں اترتا۔ اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا بھائی، اپنے ماں باپ سے مرنے سے پہلے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، اپنے عمل اور رویے سے۔ ہمارے اماں ابا جان جب راضی ہوتے تو کہتے جا پتر تینوں ستے ہی خیران ہے، جا پتر تینوں ستے ہی خیران۔ وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی، خدمت کا صلہ دیکھیے گا، اللہ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے جو سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں۔ ایک شخص سویا، خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جا اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے، برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چا کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار گیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ دوبارہ طلب کرتا ہے، موتی اور رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر ان پہ سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا۔ کون میرے بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی
खिदमत की। और जवानों, ये दौलत ही सब कुछ नहीं होती, ये टले ही सब कुछ नहीं होते यार। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन इस दौलत की हमने कदर देखी है बुढ़ापे में, जब वरासत तकसीम होती है। जब वरासत तकसीम हुई तो 1 इंच में भाई ने भाई को ज़बह कर दिया, गला काट दिया, गोलियों से भून दिया। बचपन में झगड़ा भी होता था और यहाँ भी झगड़ा हुआ। बचपन का झगड़ा बड़ा खूबसूरत था, काश कि ये बुढ़ापे में भी होता। बचपन में झगड़ा क्या होता था, माँ मेरी है बाप मेरा है, लेकिन बुढ़ापे में आकर के औलाद क्यों भूल गई यार कि ये आज भी हमारे हैं, इन्होंने हमारी खातिर कितने दुख और कितनी आजमाइशों से गुजरे हैं। लेकिन बुढ़ापे में ऐसा नहीं होता। दौलत पे झगड़ा हुआ, वरासत पे झगड़ा हुआ, लेकिन जब माँ बाप की बारी आती तो तमाशा देखने वाला होता है। हर बेटा नजरें चुराता है। कोई कहता है घर छोटा है, कुछ कहते हैं कि यार 4 महीने तू नहीं मेरे कटांदा, और कुछ नालायक ऐसे भी हैं वो कहते हैं मेरे खर्चे ज्यादा हैं। ये बात करते हुए हमें ख्याल ना आया यार, और हम भी तो पलट के देखें, हम भी तो 5-6 भाई थे, अकेला कफील था हमारा बाप। हमारी माँ से मशवरा तो नहीं किया कि 4 को दारुल अमान में छोड़ आते, 2 की अच्छी कफालत करते, एक जैसा खाना मिला, एक जैसा लिबास मिला, हमें अच्छी तालीम दी, और भाई हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखा। और आज बच्चा बेटे क्या कह रहे हैं, मेरे खर्चे ज्यादा हैं। और कुछ नालायक ऐसे भी हैं, वो कहते हैं ये बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। मकाफात अमल है दोस्त। अगर आज माँ बाप को धक्के दोगे, घर से निकालोगे, गालियाँ दोगे, इनके लिए ये बात कि मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, फरमाया साहबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं। अर्ज़ किया का इरशाद फरमाइए, फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, और भाई बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। मेरे नबी का फरमान है, फरमाया मेरी उम्मत पे एक ऐसा ज़माना आएगा, फरमाया कि जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, फरमाया उम्मत इंतज़ार करे सुर्ख आंधियों का, जल्जलों का, इन्हें ज़मीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, जिसके पास अमानत रखी जाएगी ज़ाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। फरमाया आदमी बीवियों के फरमाबरदार होंगे, माओ के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्त के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएंगे, बाप को देख के रास्ता बदल लेंगे और बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। फरमाया शराबें आम होगी, इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। तो फिर क्या होगा? सुरख आंधियां, फिर क्या होगा? जलजले, फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। कब मेरे भाई? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला और दुखी होंगे, तो फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार मैंने अर्ज किया, सुरखानियों के जरिए, जल्जलों के जरिए जमीन में और आसमान से यालाबारी होगी। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी तो इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएंगी। घर घर की कहानी है दोस्त। पहले डरते थे हम कि यार ये नाराज़ हो गए तो खाना पीना छोड़ देते थे, उतनी देर तक चैन नहीं आता था जितनी देर पाँव पकड़ के माफ़ी नहीं मांग। आजकल माँ बाप डरते हैं, अगर कोई बात की तो कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दें। आज माँ बाप नाराज, अच्छे होटलों से खाना ला के सामने बैठ के खाते हैं। ये घर घर की कहानी है। मेरे एक मिलने वाले, मेरी मुलाकात हुई तो चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा खैरियत? फूट फूट के रोने लगे, कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट ही जाता। मेरी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा? मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती मैंने ये तेरी बातें सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे, मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी ज़िंदगी की भीख मांगती है। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहब ने कॉल की, मौलवी साहब मशवरा करना है आपसे, माँ जवानी में बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं। इस बात का मुझे पूरी शिद्दत से एहसास है कि मेरे कंधों पे माँ के एहसान बड़े हैं। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांज के, झाड़ू दे के मुझे पढ़ाया लिखाया। अब मैं शादीशुदा हूँ और घर में नूह सास का झगड़ा है। वो कहता है अजीब कहानी ये है कि मैं अब दोराहे पे खड़ा हूँ, एक तरफ माँ है और एक तरफ बीवी है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैंने कहा दरगुजर भाई, घर वाली को समझा, जिस तरह पीछे माँ छोड़ गई ये भी माँ है, तू तेरा भाई और नहीं कि मैं मशवरा दे दूँ उनके पास भेज दे। मुझे कहता कि जी मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा जी क्या तरकीब आई है? वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूँ। मैंने कहा तेरी माँ की उम्र कितनी हो गई? कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम
जवानी तो तेरे नाम लगा दी, कितने ख्वाब कितने सपने देखे, और आज उसे तेरी ज़रूरत थी और तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब मैं ज़लील हो जाएंगी तो फिर क़यामत आ जाएगी, अर्श का रहमान उस कौम के बेटों से नाराज़ हो जाएगा। और कदर करो भाई, इनकी ज़िंदगी में कदर करो। मेरे नबी ने कदरें बताई माँ बाप की, जन्नत फरमाया तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का अदब करके भी बताया। अभी अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे कि हुजूर मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद नज़र असहाब हैं, आंखों में आंसू आ गए, हुजूर को माँ याद आई। ये मक्की नहीं, ये मदरी दौर है, यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर की आंखों में आंसू आए कि माँ याद आई। और भाई जिसने गुर्बत का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरज़ू ज़रूर करता है, काश कि आज मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज़्ज़त की दस्तार देखते। मैं और आप अपना अपना ज़रा माजी पलट के देखें तो हम खुद को गुर्बत की लकीर पे देखते हैं। एक वक़्त का होता था और एक वक़्त का होते ही नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, प्याज से रोटी खा लेते थे, गुड़ से खा लेते थे यार, और आज दस्तरखान पे अनवा अक़साम के खाने फल हैं यार। दिल मचलता है काश कि आज माँ बाप होते तो ये बहार भी देखते। कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था और रिश्तेदार भी नहीं पहचानते थे। वैसे भी गरीब का कोई रिश्तेदार होता भी कोई नहीं। गरीब तो किसी को कॉल कर लेना बेचारा, तो नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करेगा कि कहीं कर्ज ना मांग ले, कर्ज दे दिए तो वापस कैसे करेगा। और यार गरीब खुददार भी बड़े होते हैं, हाथ फैलाना तो ही ने जुस्तजू जानते हैं। वो तो इस ख्याल से कॉल कर रहा है ये मेरे चचा का, ये मेरे ताए का, ये मेरे मामू का बेटा है, लेकिन उसे क्या बोले भाले को पता कि दौलत आ जाए तो फिर रिश्ते भी, तरजीहात भी। कम लोग हमने देखे हैं जो अपने आगाज़ को याद रखते हैं, वरना औकात भूल जाने वाले लोग हमने देखा है। लेकिन ये भी बात पेश नज़र रखिएगा भाई, ऊपर जाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में टाइम नहीं लगता। तो अल्लाह को ये रौनक भरे रवैये नहीं पसंद। खैर कभी ज़माना था कोई रिश्तेदार ही नहीं पहचानता था, गली मोहल्ले में नहीं लोग जानते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में शोहरत है, आज नाम है, शोहरत है। आरज़ू मचलती काश माँ बाप होते तो ये सर पे दस्तार देखते। और यार कभी पास साइकिल नहीं होता था, हाँ आज जहाज़ों के सफ़र हैं, आज दौड़ती गाड़ियाँ हैं, आज फलक बोस इमारतें हैं, आज बंगले हैं, प्लाजे हैं। आरज़ू मचलती है काश के माँ बाप होते तो ये बहार देखते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा खुशी की हैं या माजी की तलखियाँ। मुझे कहता है एक ज़माना था कि माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता है माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो कहता है आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर ज़िंदगी दोस्त बड़ी अधूरी होती है। मैं 1997 में किबला हज़रत के पास हाजिर हुआ तो मेरी वालिदा ने उंगली थमाते हुए कहा कि मेरी आरज़ू है कि जिस ताब मिंबर पे बैठ के लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाते हो तो ये भी इन्हीं राहों का राही बने। वो 2 साल बाद अल्लाह के पास चली गई, हम राज़ी बर रज़ा हैं, हमने भी चले जाना है, लेकिन अपनों की याद बड़ी तड़पाती। आज पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा और कभी कभी ये आरज़ू मचलती है कि यार काश वो होती तो मैं कहीं खिताब करता, वो पर्दे की ओर में देखती और मेरा कद किस कदर बढ़ता। ये इंसानी फितरत है दोस्त। वो आरज़ू करते काश आज मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज़्ज़त की दस्तार देखते, आज शोहरत देखते, आज प्यार की कहानियाँ देखते, आज राहों में लोग फूल नहीं पलके और दिल बिछाए हुए हैं। ये इंसानी फितरत है यार। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा 6 साल उम्र थी मेरे नबी की जब माँ बिछड़ी थी। और एक अबवा नामी बस्ती आती है, ये मक्का और मदीना के दरमियान एक छोटी सी बस्ती है, ये मदीना से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ आकर के सैयदा आमिना रुक गई, बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया, उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खुब सी जाती है। 2 एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज़ ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नज़र आती रही मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पे जब पहली दफ़ा हाजिर हुआ, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था,
हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया, लेकिन जब माँ जी के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानिएगा ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, मैंने कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, आज हम भी यहाँ से पलट पलट के देखेंगे। जब पहली दफ़ा पलट के देखा, वो बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी हमारी आंखों के सामने आई, और फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मैंने क्या देखा कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। माँ की याद आई, सहाबा को कलाम किया, फरमाया काश माँ होती, नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता, मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबी के दरवाजे पर आकर कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। बड़ी दौलत है भाई, अगर आपके पास है तो मुबारक हो, नाराज़ है तो कदमों में जा कर के गिर कर के माजरत कर लो। ज़िंदगी में अगर गफलत की है तो यार आज से ही अज़म करो कि हम उनके खिदमत गुजार फरमा बरदार बेटे बनेंगे। भाईजान मैं आखिर पे एक दो बात ज़रूर कहूँगा। आप बड़े हो गए और आपके कंधों पे अब बड़ी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। माना कि ज़ाहिर है 8 घंटे आपने मेहनत करनी है, तो मेरा कहना है यार क्या 24 घंटों में से 1 घंटा आपके पास नहीं है कि आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो, इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, कभी कभी यार इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, कभी कभी बाहर होटल से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी अपने अब्बा जी से पूछा करो कि अब्बा जी को तो आपका कोई पुराना दोस्त कोई क्लास फेलो है तो चलो उनसे मिल के आएंगे। आप जानते नहीं कितने राज़ी होंगे अपने बच्चों पे। भाईजान इनको वक्त देना शुरू कर दो। माँ बाप मरते उस वक्त है जब औलाद वक्त नहीं देती, और हमें ये धोखा लगा और हम ये समझते रहे कि हम महीने में एक दफ़ा इन्हें को 2-4 हज़ार खिदमत कर देते, शायद मैंने ज़्यादा बता दिए हैं, तो बस हमारा हक अदा हो गया। और भाईजान ये हमारे पैसों के भूखे नहीं होते, इन्होंने ज़िंदगी में बड़ा कमाया होता है और कमा के हमारे ही ऊपर खर्च किया होता है। इन्हें हमारे पैसे नहीं चाहिए यार, इन्हें चाहिए तो अपनी औलाद चाहिए। इनका अब जी चाहता है मेरा बेटा मेरे पास बैठे, लेकिन महीना महीना घर में रहते हुए भी बाप से माँ से मुलाकात नहीं होती। और भाई इनकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। मैं पिछले दिनों बिल्कुल, मुझे उस गांव का नाम नहीं आता है, खारियाँ आपके शहर के बिल्कुल पड़ोस में गांव है, हाँ शायद वही होगा, मैं वहाँ हाज़िर हुआ। वसीम अब्बास नामी एक नौजवान इंग्लैंड होते हैं, तो मैंने दौरान गुफ्तगू एक बात की, तो उन्होंने वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आए तो उन्होंने अपनी एक बात सुनाई जिसका नशा मेरी तबीयत पे छाया और आज तक भी है। मैंने दौरान गुफ्तगू एक अपने दोस्त फ़ाहद की बात सुनाई कि वो कहते मैं वालिदा को दुकान पे ले गया तो दुकानदार ने जूते दिखाए 5, 6, 7 किस्म के। मैंने माँ जी से पूछा कौन सी पसंद है, तो उन्होंने कहा पुत्र सारी चंगे ने। तो वो कहते मैंने कहा सारी पैक कर दो। मुझे अच्छा लगा कि यार इतने सादतमंद भी बेटे होते हैं, तो यहाँ तो 500 का भी हिसाब लेते हैं ना बेटे, अब जी अगले हफ्ते दे देते हैं, थोड़े दिन तो होने देते हैं, वो लाख भी गए ने। वो कहते मैंने कहा सारी पैक कर दो। तो वो वसीम अब्बास, अल्लाह उस जवान को लंबी ज़िंदगी दे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसे, मुझे उस दिन से उस नौजवान से मोहब्बत हो गई। वो कहते मैं एक दिन अपनी वालिदा को कॉल किया कि माँ जी आप क्या कर रही हैं, तो मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाना ही थे आ जा। वो कहता मैं 3.5 घंटे में एयरपोर्ट पे था और आगे इंग्लैंड से फिर यहाँ आने में 7-7.5 घंटे तो लगते ही हैं। तो कहते वहाँ से मैं उड़ा और माँ के हाथ का पका हुआ आके साग खाया था। और हम यहाँ वतन में रहते हुए भी माँ बाप के पास नहीं बैठते यार। इन्हें वक़्त दिया करो, इनकी खिदमत किया करो, अल्लाह राज़ी होगा। और आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बातें सुनाई वालिदैन पे, दिल मचला के काश होते तो खिदमत करते। किसी ने वासफ़ अली वासफ़ से कहा कि माँ बाप ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए, कोई अमल वजीफ़ा है। दिल को छू लेने वाली बड़ी माकूल सी बात की। आप फरमाते पीछे जो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाए उनके साथ हुस्न सुलूक किया करो। तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ कुछ भाई अमीर और कुछ भाई गरीब होंगे। देखिए गुर्बत अमारत अल्लाह की तरफ से है। कोई मत ख्याल करे कि मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरे पास दौलत ज़्यादा है। ये अल्लाह की तकसीम है भाई। अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया, किसी को थोड़ा दिया। जिसे ज़्यादा दिया उसके लिए भी इम्तिहान, जिसे थोड़ा दिया उसके लिए भी आजमाइश। तो खैर ये अल्लाह की तकसीम है। तो मैं तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ कुछ भाई अमीर और कुछ भाई गरीब होंगे। कितना अच्छा है यार अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे समाज में शायद ये बहुत कम होता है।
کہ امیر کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل باقی بچ جانے والے کتوں اور روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر اور اس کی گھر کی کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں تو اس صفاق کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہوتی۔ تو ہمارا کہنا ہے بھائی بھائیوں کی کفالت لے لو۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، کتنا اچھا تھا کہ یار بھائی بھائی کی کفالت لے لیتا۔ توجہ دلاؤں گا، یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی، کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے، ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے۔ غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے تیری جرت کیویں ہوئی، تو اپنی اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بنا دیتی ہیں دوست، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے بھائی ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کتاب تھی تحفہ، کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین کھا گیا۔ اور بہنیں ویسے بھی وار دیتی ہیں بھائیوں پہ، انہیں ان چیزوں کی اہمیت ہی، بھائی سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ اپنا حصہ مانگ لے نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جاتا ہے، پھوپھی نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تو انہوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا۔ کیا غلط کیا بھائی اس نے؟ اور بھائی اپنی بہنوں سے محبت کرو، بہنوں کی ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا، یہ 15 دن بعد اداس ہو جاتے ہیں، داماد کا ترلا کر لیتے پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑ آئیں گے۔ لیکن یاد کیجئے گا بھائی، والدین کے بعد ہماری بہنیں 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، معذرت سے ہمیں ان کی کبھی یاد بھی نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں مگروں لتھیاں جان چھوٹی ہے، یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے نا ہمارے گھر میں تو 2 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں۔ بھائی کے رویے دیکھ کے، اور بھائی اپنی بہنوں کو عزت دو، تکریم دو، اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ماں باپ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عدنان بھائی کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے، جنت میں